Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the state class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of practical electricity and we will study the topic of kilowatt hours, which is a unit of electricity, and cost of electricity. Right? For example, आपका जब electricity का bill आता है, how do you calculate the cost of your bills? So, in the previous class, we have studied the formulas of electrical energy and electrical power. For this very class, it is very important to go and revise those formulas. फिर ही आपको ये class समझ आएगी, right? So, what is kilowatt hours? But जो kilowatt hours is a commercial unit of electricity, right? For example, when you say that you have consumed 1 unit of electricity, that 1 unit is equal to 1 kilowatt hours. But the point is, you must know कि kilowatt hours physically किस चीज का यूनिट है? क्या ये करंट का यूनिट है? क्या ये वोल्टेज का यूनिट है? क्या ये पावर का यूनिट है? ये किस चीज का यूनिट है? इस बारे में जरा आप खुद से सोचें, क्या ये पावर का यूनिट है? पावर का यूनिट तो वॉट्स या किलोवॉट्स हो सकता है, ये तो किलोवाट आवर्स है, तो ये किस चीज का यूनिट है? इट इज अ यूनिट ऑफ energy. In fact, it's a unit of electrical energy. Now, how you would know that this is the unit of electrical energy? Just after writing its definition, I'll explain you. Right? So, 1 kilowatt hour is energy consumed. 1 kilowatt hours is energy consumed when load of 1 kilowatt or 1000 watts is operated for 1 hour. ठीक है, सो बेसिकली इट्स यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब एनर्जी का कैसे यूनिट है, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं. एज यू नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, मेक एनर्जी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, यू विल गेट टू सी दैट एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. राइट, एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करने से आपके पास एनर्जी आती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है. नाउ अब इस यूनिट पर जरा गौर करें. इट इज रिटन एज किलोवाट आवर्स. ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किलोवाट को अलग लिख दे और आवर्स को अलग लिख. अब जरा फोकस करें कि किलोवाट किस चीज का यूनिट है. बच्चों, किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ पावर और आवर्स किस चीज का यूनिट है? आवर्स इज अ यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, so 1 kilowatt hour is power multiplied by time. So power multiplied by time is energy. So 1 kilowatt hour is a unit of energy. Right? अच्छा, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जूल्स है. So why do you don't consider joule as unit of energy? Why you go for kilowatt hours, which is a bit more complex? तो जो बात ये है कि जब हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हम 1 जूल या 10 जूल या 100 जूल ऑफ एनर्जी नहीं कंज्यूम करते. इन फैक्ट वी कंज्यूम thousands and thousands of joules of energy. So joule is a very small unit to find out the value of electrical energy. That's why we go for a bigger unit. ठीक है, 1 kilowatt hours has a lot of joules. In fact, कितने joules हैं हम यहाँ पर find out करते हैं. Energy is equal to 1 kilowatt hours. Let's break it down. Energy is equal to power in kilowatts. हम इसको रिप्लेस कर देंगे पावर इन वॉट्स और टाइम को रिप्लेस कर देंगे. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? हम टाइम को रिप्लेस कर देंगे सेकंड से. राइट, सो अब 1 किलोवाट आवर्स पावर को पहले आप वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे. आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू 1000. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम. 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 1 आवर हैज 3600 seconds. Right? So from here you get 3600,000. Right? So it means that 1 kilowatt
which is a unit of electricity, has 3.6 multiplied by 10 raised to power 6 joules of energy. Or you can also say that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoules of energy. ठीक है. सो जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो कि इस वीडियो में हम आगे जाके देखेंगे भी, उसके ऊपर जो टैरिफ मेंशन होता है, फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज लेट्स से 40 रुपीज, सो दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर्स, दैट इज this much amount of electrical energy, 3.6 megajoules of energy, or 3.6 into 10 raised to power 6 joules of energy, right? So kilowatt is in fact a unit of energy, right? Acha, so let's suppose cost of one unit क्या होता है? Now you all know that 1 unit is 1 kilowatt hours is let's say 40 rupees. Let's suppose इस क्लास में हम बैठे हैं, इस क्लास में एयर कंडीशनर भी ऑपरेशनल है, लाइट भी ऑपरेशनल है, फैन भी ऑपरेशनल है, तो कलेक्टिवली आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? फॉर एग्जांपल यू हैव कंज्यूम्ड 20 units. What will be your cost? In that case, cost of your electricity will be equal to 20 units multiplied by cost of 1 unit, which is 40. 20 multiplied by 40 is 800. So the cost of electricity for that particular day will be 800 rupees. ठीक है. So how you will find number of kilowatt hours? उसके लिए हम फॉर्मूला डिवाइस करते हैं. Number of kilowatt hours is equal to power in kilowatts multiplied by time in hours. बच्चों अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप किलोवाट्स को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे और आपके लिए क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगे. ठीक है. देखिए मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है. किलोवाट आवर्स, ठीक है, इट मींस दैट पावर इज इन किलोवाट्स एंड टाइम इज इन आवर्स, राइट? सो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसके क्वेश्चंस आसान लगेंगे. इसके क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. So here you have first question, and in this question two air conditioners, each of 800 watts are operated for 10 hours every day for whole month. अब याद रखना जब भी आपके पास 1 month का क्वेश्चन आएगा, you have to consider 1 month has 30 days. ठीक है, ये जेनेरिक आप लोगों ने याद रखना है. ठीक है. कैलकुलेट पार्ट ए में you have to calculate number of units या number of kilowatt hours consumed. Now I just told you that the formula of number of kilowatts is number of kilowatt hours is equal to power in kilowatts multiplied by time in hours, right? Now what is the power of one AC? Power of one air conditioner is 800 watts. What will be the power of 2 air conditioners? Because here I have 2 air conditioners. The power will be equal to 800 multiplied by 2, which is 1600 watts. But you have to write power in kilowatts. How you will convert power in kilowatt? By dividing it by 1000, right? So this is equal to 1600 divided by 1000. राइट. सो ये आपके पास पावर आ गई किलोवाट आवर्स. अब टाइम इन आवर्स लिखना है. एक दिन में कितने आवर्स के लिए ऑपरेट किया? एक दिन में आपने ऑपरेट किया 10 आवर्स के लिए, तो आप लिखेंगे 10. और टोटल कितने डेज के लिए कंज्यूम की इलेक्ट्रिसिटी? 30 डेज के लिए ऑपरेट किया, राइट? सो यू हैव टू कन्वर्ट टाइम इन आवर्स. एक डे में कितने आवर्स? 10 आवर्स, तो 30 डेज में 300, राइट? नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ number of units consumed या number of kilowatt hours consumed, right? So this will be equal to 1600 divided by 1000, which is 1.6. Power in kilowatt hours, kilowatts is 1.6 and time in hours is 300. So 1.6 multiplied by 300 is 480 kilowatt hours in fact. ठीक है.
480 किलोवाट आवर्स। बी पार्ट देखें, 1 unit या 1 kilowatt hour has cost of 50 rupees. Calculate the cost of electricity. So if 1 unit या 1 kilowatt hour is costing you 50 rupees, what will be the cost of electricity of 480 units? So 480 units या 480 kilowatt hours will have a total cost of 50 multiplied by 480. This is 50 multiplied by 480 is 24,000. That cost will be 24,000 rupees. Now the point is, how can you reduce the cost of electricity? देखिए, आप दो तरह से कॉस्ट की रिडक्शन कर सकते हैं। नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं? दे आर डिपेंडिंग ऑन पावर इन किलोवाट्स एंड टाइम इन आवर्स। देखिए, एक डिसीजन आपको तब लेना होता है जब आप कोई चीज, कोई अप्लायंस बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रिज बाय कर रही है, एक फ्रिज 400 वॉट्स की है, एक 600 वॉट्स की है, तो आई सजेस्ट कि आप वो वाला फ्रिज बाय करें जिसकी पावर रेटिंग कम है। ठीक है, सो यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पावर दैट यू आर कंज्यूमिंग। ठीक है, तो एक डिसीजन तो ये हो गया कि अपनी पावर को रिड्यूस करें, और दूसरी बात ये हो गई कि टाइम ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस करें। अगर आप एसी पूरे दिन के लिए चलाते हैं, तो अगर लेट्स सपोज एसी की जरूरत नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कर दें ताकि आपका टाइम कम हो। जब टाइम कम होगा तो एनर्जी कंज्यूम भी रिड्यूस हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, you can see three bulbs that are connected in parallel with each other. Right? The supply voltage is 240 volts. Each lamp has resistance of 36 ohms. Lamps are switched on for 8 hours every day. Right? Cost of electricity is 60 rupees per kilowatt hours. Calculate, A part में वो कह रहा है calculate number of units या number of kilowatt hours consumed in 10 days. Once again, you will write down the same formula, which is number of kilowatt hours is equal to power in kilowatts multiplied by time in hours. Right? But the problem is कि हमारे पास इस question में power given नहीं है। ठीक है, so how you will find out the value of power? देखें, all the lamps have been connected in parallel. ठीक है, जब सारे के सारे लैंप पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या चीज कांस्टेंट होगी? व्हाट इज कांस्टेंट इन पैरेलल? वोल्टेज इज कांस्टेंट इन पैरेलल. इट मींस all of the lamps are getting same voltage of 240 volts each, right? So the voltage that every lamp is driving is 240 volts. And what is the information? You have information of resistance here, right? तो एक बल्ब की पावर फाइंड आउट करेंगे. पावर इज प्रोडक्ट ऑफ, what is the formula of power that relates voltage and resistance? आप यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर. अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप V इक्वल्स आई आर से पहले करंट फाइंड आउट करें और फिर पावर का दूसरा फॉर्मूला यूज कर लें, विच इज पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, वोल्टेज इज 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 36. यहां से पावर कैलकुलेट करेंगे, 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36. पावर ऑफ वन लैंप इज कमिंग आउट टू बी 1600 वॉट्स. ठीक है, सो व्हाट विल बी द पावर ड्रॉन बाय ऑल थ्री लैंप्स? सो फॉर थ्री लैंप्स this will be 3 multiplied by 1600, which is 4800 watts. 4800 watts, right? So अब आपके पास पावर की वैल्यू है, लेकिन आपने पावर सब्स्टिट्यूट करनी है किलोवाट्स में, तो आप इसको किलोवाट्स में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके. दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.8 किलोवाट्स. सो दिस इज
4.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। एक डे में कितने आवर्स के लिए ऑपरेट किया? फॉर 8 आवर्स। ठीक है, कितने डेज के लिए ऑपरेट किया? 10 डेज के लिए, राइट? सो number of hours is 8 multiplied by 10. Let's calculate number of kilowatt hours. This is 4.8 multiplied by 8 multiplied by 10, and this is 384. 384. Write the units very carefully. Kilowatt hours. किलो का K small है, watts capital W है, और hours small h. Right? Okay, next part, which is very easy. Cost of electricity. तो ये तो बड़ा आसान है, यूनिटी मेथड से सॉल्व करने। एक यूनिट की क्या कॉस्ट है? एक यूनिट की यहाँ पर कॉस्ट मेंशन है 60 रुपीज। ठीक है, अब याद रखना टैक्सेशन के क्वेश्चन नहीं आते, इसमें टैक्स नहीं आपने इंक्लूड करना, जस्ट हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 kilowatt hour या cost of 1 unit. So number of kilowatt hours are 384 and cost of 1 unit of electricity is 60. So simply calculate the cost by multiplying it by cost of single unit, and this cost is coming out to be 23,040 rupees. अगर आपके पास कॉस्ट सेंट्स में गिवन है तो आपका फाइनल आंसर भी सेंट्स में आ जाएगा, राइट? अच्छा, दिस इज हाउ you can calculate the cost of electricity. Now, अब आप लोगों को क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि आपकी बिलिंग किस तरह से होती है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस तरह से कैलकुलेट होता है। हर साल टैरिफ इंक्रीज हो जाता है, पीपल आर शिफ्टिंग टू सोलर विच इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो कि आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो वन टाइम ज़्यादा आ जाती है, लेकिन उससे ऑनवर्ड्स जो आपके पास फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज यू आर जनरेटिंग योर ओन एनर्जी। इनफैक्ट अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है, नेट मीटरिंग हुई, यू कैन सेल योर इलेक्ट्रिसिटी टू गवर्नमेंट और आपको उसका जो है वो रिफंड मिल जाता है। खैर, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐड किया है जस्ट टू शो यू। ठीक है, इनफैक्ट ये मेरे ही हाउस का बिल है। यू कैन से लेस्को विच इज लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। व्हाट यू कैन सी हियर इज कि in the month of May, I have consumed 380 units of electricity. तो इस 380 का मतलब क्या है? 380 यूनिट्स का मतलब ये है जनाब 380 किलोवाट आवर्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए? 866, 495, 525, सितंबर में 380, 322। अच्छा, विंटर्स में कम यूनिट्स कंज्यूम हुए, क्यों? बिकॉज विंटर्स में आपके मेजर अप्लायंसेस एसी वगैरह इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते। वंस अगेन समर में जो है ये यूनिट जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे जा रहे हैं। और अगर हम इस करंट मंथ की बात करें, करंट मंथ में यू कैन सी दैट आई हैव कंज्यूम्ड टोटल यूनिट्स विच इज 307 प्लस 54। अच्छा, दो टैरिफ है, मीटर टैरिफ है ऑफ पीक का और पीक का। पीक आवर्स कौन से होते हैं? पीक आवर्स वो होते हैं जिस टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, जनरली वो 5 PM टू 11 PM होते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे थोड़ी सी हायर साइड पे होती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करें। ठीक है, एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट दैट आई हैव पेड फॉर माई बिल्स। ठीक है, ये शो कर रहा है कि मैंने हर महीने जो है वो बिल पे किया है। ठीक है, जो यहाँ पर अमाउंट है वही अमाउंट आपको सामने नजर आ रही है। इस लास्ट रो में अमाउंट आपको थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है, इसका मतलब है शायद मैंने बिल पे किया होगा लेकिन ड्यू डेट के बाद। अच्छा, सो मैंने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए? मैंने यूनिट्स कंज्यूम किए 307 एंड 54। 307 एंड 54 विच इज 361। बिल पे ये भी कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा कि मैंने टोटल 361 यूनिट्स कंज्यूम किए, ये लिखा हुआ। सो ये लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, यूनिट्स कंज्यूम्ड आर 361 एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 13,182.08 रुपीज। ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
यहां पर बिल कैलकुलेशन, जनाब यहां पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट टैरिफ। टैरिफ का मतलब ये है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई हैव कंज्यूम्ड 35.5 units of electricity in peak hours, sorry, 307 units in off peak hours. The cost of each unit was 35.5. Then I have consumed 54 units in peak hours, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी हायर साइड पे, which is 41.89, राइट। सो ऑफ पीक आवर्स की कॉस्ट और पीक आवर्स की कॉस्ट इसकी मल्टीप्लीकेशन से आएगी और वो कॉस्ट ऐड करके यहाँ पे लिखी हुई। देन देयर आर सम टैक्सेस विच इज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स, एफसी सरचार्ज, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट के जनाब आपकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इंक्रीज हो गई है तो प्रीवियस यूनिट्स पर भी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, वो जो इंक्रीज इन कॉस्ट है अब आपको प्रीवियस यूनिट पर भी पे करना है तो ये वो है। देन यू हैव दिस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विच इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, so these are some GST गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। इन सारों को ऐड करने से हमारी जो टोटल बिल जो बना दैट इज अ कलेक्टिव अमाउंट ऑफ 18,789 रुपीज जो कि मैं पे कर चुका हूं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और जब आप वन नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप उसको कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं, एरियर्स अगर हों तो ऐड होते हैं, दैट इज हाउ योर बिल्स आर कैलकुलेटेड। अब लोग सोलर क्यों लगाते हैं? सोलर इस वजह से लगाते हैं कि जो आप यूनिट्स या जो एनर्जी गवर्नमेंट से बाय कर रहे हैं वो आप खुद जनरेट करेंगे यूजिंग योर सोलर पैनल्स और इन्वर्टर उसको बैलेंस आउट करके आपको प्रोवाइड कर देगा फॉर कंजम्पशन। दैट इज कॉस्ट कटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो यू आर मूविंग टूवर्ड द ग्रीनर एनर्जी जिसमें कार्बन फुटप्रिंट जीरो होता है, राइट। तो हर कोई सोलर क्यों नहीं लगा रहा? यू ऑल नो दैट इनिशियली इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज अ बिट एट हायर एंड, ठीक है। जो लोग बेहतर समझते हैं, जो अफोर्ड करते हैं, वो सोलर लगवा लेते हैं, बाकी लोग सोलर नहीं लगवा लेते। सो आई थिंक अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी मार्क इन दिस कॉन्सेप्ट, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, फॉर देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।